Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they still wanna do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. So what I realized that as you are seeing that I am wearing Indian today, because it's very recently when I started to feel comfortable wearing Indian clothes and जो भी women कपड़े पहनती हैं, because earlier I never used to feel comfortable and never felt aligned with those clothes. And trust me, when I wear pants and jeans, I used to feel more comfortable, but I used to feel that I feel manly. Every time I'm wearing pants and jeans, I do not feel very feminine. Rather, when I'm wearing my, these type of clothes, what I have realized now that it just comes to me. I feel soft, I feel good, I feel more beautiful and safe. So, also I wanted to talk about relationship and safety in shape. Safety in relationships. So, I'll tell you about me and myself. So, what used to happen with me that I never used to value that what I am bringing to the table, like what I am bringing in somebody's life. I never used to feel that that is valuable. Just me, my presence, okay? What my presence is bringing in somebody else's life. I never used to feel that that should be appreciated or acknowledged or seen. And I always used to feel that I need to do a lot, I need to sacrifice myself a lot, I need to give a lot. I need to always be helpful, always be super kind, not having any kind of boundaries and always giving. बट उसमें होता क्या था कि जब मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी, हेल्प चाहिए होती थी, तो मेरे को वो चीज़ कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं होती थी, मेरे पास वो चीज़ कभी भी नहीं आती थी. And I attracted all those type of people in my life who always needed something from me, who were needy. They always had some kind of need and they always wanted me to be available, they always wanted me to make them feel happy, they always wanted me to give them something, they always wanted me to be extra helpful, they always wanted me to have no boundaries. And I always used to feel that यार क्या मेरी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग आएंगे, कोई ऐसे फ्रेंड्स आएंगे, कोई ऐसी फ्रेंडशिप आएगी जो मुझे भी उतना दे पाए जितना मैं लोगों को दे रही हूँ, जो मेरी चीज़ों को भी बिना बोले समझ जाए, जो मेरी भी वैल्यू करे जैसे मैं उनकी वैल्यू करती हूँ, जो देयर आई वॉज. सो आई ऑलवेज यूज टू फील दैट क्या मेरी लाइफ में भी वैसे लोग आएंगे जो मेरी उतनी वैल्यू करें, मेरी वैल्यू को समझें, जो मेरे बिना बोले मेरे पसंद नापसंद को समझ जाएं, जो मेरे बिना बोले मेरे मूड को समझ जाएं, जो बस समझ जाएं कि शी नीड्स अस, और जो मेरे साइलेंट को समझ पाए. क्यों फिर धीरे 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 मैंने खुद से क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे मैंने ये समझा कि आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ. I don't value myself enough for what I am bringing to the table. I am not valuing myself enough, कि I'm not valuing myself as a person, what I bring in their life. I don't value that कि मैं उनकी लाइफ में एज अ एनर्जेटिक चेंजेस में लाइक एनर्जी वाइज मैं क्या ला रही हूँ, कि मेरी एनर्जीज कैसी हैं. मैं जब किसी की लाइफ में जाती हूँ तो मैं उसे कैसा फील करवाती हूँ, मैं उसके साथ कैसे रहती हूँ, मैं उसके साथ कैसे बात करती हूँ, मैं उसकी कैसे किस तरीके से हेल्प करती हूँ. सो आई वॉज नॉट वैल्यूइंग माई एनर्जी, कि मैं कितनी पॉजिटिविटी ला रही हूँ, कितनी अपलिफ्टिंग ला रही हूँ, कितना कंपैशन ला रही हूँ, कितना उन्हें सीन और हर्ड फील करवा रही हूँ. आई वॉज नॉट वैल्यूइंग दैट.
एंड आई वॉज ऑल अबाउट एक्शंस, कि जितने मैं एक्शंस करती जाऊँगी, जितना मैं फिजिकल फॉर्म में उनको चीज़ें दूंगी करूँगी, वही वैल्यू है। एंड मुझे हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा, मुझे हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ेगा, मुझे हमेशा हेल्पफुल होना पड़ेगा, मुझे हमेशा काइंड, कंपैशनेट एंड विद नो बाउंड्रीज होना पड़ेगा, मुझे हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में रखने के लिए मुझे हमेशा उन्हें खुश रखना पड़ेगा। एंड मुझे हमेशा उन्हें अपनी वैल्यू को समझाना पड़ेगा। एंड मुझे हमेशा दूसरों से फाइट करना पड़ेगा उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए ना, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बस आपकी वैल्यू करें, वो आपको सेफ फील करवाएं, वो आपको रिप्लेस्ड फील ना कराएं, या फिर आपको वो अनग्राउंडेड फील ना कराएं कि आपको किसी और के साथ फाइट करना पड़े आपकी वैल्यू के लिए उनकी लाइफ में। मतलब वो आपको ऐसा फील कराए कि आपको बस फील हो कि नोबडी कैन रिप्लेस यू और टेक योर प्लेस, दैट यू आर स्पेशल। ओके, और कहीं ना कहीं ये ग्राउंडिंग आप में खुद से भी आएगी, क्योंकि सामने वाला आपको कितना भी फील कराए, अगर वो आप में खुद से नहीं है तो वो आपको कोई फील नहीं करा सकता। दैट्स व्हाट आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड अबाउट मी, कि मेरी लाइफ में कोई भी मुझे कितना भी आपको ना कांस्टेंट अश्योरिटी चाहिए होता है, अश्योरेंस चाहिए होता है, आपको कांस्टेंट अश्योरेंस चाहिए होता है कि कि आप उनकी लाइफ में मायने रखते हैं, आप वैल्यूएबल हैं, एंड आप को वो छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कांस्टेंट अश्योरिटी चाहिए होती है। तो उस अश्योरिटी की जो सेफ्टी है वो आपको खुद अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप सेम टाइप के लोग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सेफ फील कराएंगे, वैल्यूएबल फील कराएंगे, अप्रिशिएटेड फील कराएंगे। आप जो उनके लिए कर रहे हैं वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। ओके, सो वो हम कैसे अपने अंदर लाए, वो आएगा आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाकर। आप जब तक वो अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे कि आई एम वैल्यूएबल एंड सो आप ये सेफ्टी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो व्हाट आई एम practicing, I'll share with you all that you will have to rewire your mind. You will have to release all the limiting beliefs जो आपको ये बोलते हैं कि आप वैल्यूएबल नहीं हो। ट्रस्ट मी, राइट डाउन ऑल द बिलीव्स। ओके, think about the friendship in your life, the kind of friendship you want in your life. Okay, think about the friendship in your life, the kind of friendships you want in your life, the kind of people in those friendships you want in your life, the kind of energy you want from those people. Okay, you want in those people. Okay, एंड अब आप खुद को सुनिए बैठ के, अब आप खुद को सुनिए कि आपने जब ये सब कुछ लिख लिया तो अब माइंड आपसे क्या बोल रहा है। मैं तो कभी ये मेरी लाइफ में तो ऐसे लोग आ ही नहीं सकते, मुझे तो कभी ऐसे लोग अप्रोच कर ही नहीं सकते, मुझे तो कभी ऐसी फ्रेंडशिप्स मिल ही नहीं सकती, लोग तो मुझे कभी वैल्यू किए नहीं, लोगों ने कभी मेरी वैल्यू समझी नहीं, कभी जो मैं उनकी लाइफ में लाई एक्नॉलेज किया नहीं। I was always ghosted, I was never valuable, I was never acknowledged. मुझे ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे, मेरी लाइफ में ऐसे लोग कभी नहीं आएंगे। इतने सारे थॉट्स हैं, एंड देन एंगर है खुद के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, एंड देन फील इट। ओके, एंड देन जस्ट राइट डाउन। एक दिन लिखिए, 2 दिन लिखिए, 3 दिन लिखिए। जब जब आपको वो थॉट्स आते हैं ना, फ़ोन में लिखिए, पेपर में लिखिए। फॉर मी पेपर पे लिखना मुझे हेल्प करता है। ओके, फ़ोन में लिखना मुझे इतना हेल्प नहीं करता। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट येस। ओके, एंड उस सारे थॉट्स को ना ध्यान से पढ़िए, एंड फिर खुद को बोलिए दीज थॉट्स आर नॉट माई रियलिटी। I'm not this person. Okay, I used to be this person, but these thoughts are only thoughts. एंड दीज थॉट्स कैन चेंज। आप अपने माइंड को ये समझाइए कि ये जो थॉट्स हैं ये सिर्फ एक थॉट्स हैं, ये मेरी रियलिटी नहीं है। इट जस्ट दैट कि मुझे ये चीज़ कभी फील नहीं हुई डजंट मीन कि मुझे ये चीज़ कभी मिल नहीं सकती।
योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, आपने ये कोट तो सुना ही होगा। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस ने बनाए हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला है अभी तक। एंड अगर आपके पास नया एक्सपीरियंस आएगा तो आपके पास नया थॉट आएगा, एंड वो थॉट आपकी नई रियलिटी को बनाएगा। तो क्यों ना आप वो पहले ही स्टार्ट कर दो। आप खुद को बोलिए, आई एम डिजर्विंग ऑफ अ डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप where I am totally seen and heard and acknowledged for what I bring into their life. Not materially, okay, not physically, any physical form में, but as a person, as a soul. But उससे पहले आपको खुद को, अपनी खुद की वैल्यू जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, कि आपकी एनर्जी कितनी सेक्रेड और वैल्यूएबल है, कि आप लोगों की लाइफ में जब होते हो तो वो आपके आसपास कितने अपलिफ्टेड और अच्छा फील करते हैं, वो आपकी एनर्जी ही है। एंड आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको फिजिकल फॉर्म में खुद को सेक्रीफाइस कर करके सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और लोगों को अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा। एंड आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, बिकॉज आई हैव बिन देयर and I'm still working on it. I do want to attract my soul sisters because I do want and I do believe and have faith that I will attract that deep, deep soul connection जो होता है ना, वैसा sisterhood friendships. Okay, and I truly want that and I'm working on it. Okay. Also, you need to release all the resistance from attracting those type of people in your life, because कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आपके पास्ट में आपके किसी फ्रेंड ने उन्होंने आपको हर्ट किया, फिर आप खुद को क्लोज कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आपको वैसा ही हर्ट मिलेगा, सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो, सेम हर्ट से आपको गुजरना पड़ेगा, और आप वो रिलीज़ नहीं करते हो, आप उस चीज़ पे काम नहीं करते कि आपने ऐसा क्या ओवर सेक्रीफाइस किया, या फिर आपने कौन से रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया, या फिर आपने कहाँ पे अपने आप की वैल्यू नहीं की। भाई थोड़ा और तेज चला ले जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। आपकी ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, आपकी कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान से जो आपको लगा कि आप थोड़ा और करेंगे, थोड़ा और देंगे, थोड़ा और सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा और उसे हील करेंगे, थोड़ा और उसे पुश करेंगे, तो वो आपको ये लाके देगा। आपकी ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी जो उन्होंने मीट नहीं की, जिसकी वजह से आप इतना हर्ट कर रहे हैं, एंड आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे क्यों है? आपकी कौन से वुंडेड सेल्फ से वो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं जो आप चाहते हैं कि लोग पूरा करें आके आपकी लाइफ में। ओके, लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ़ यू वर नॉट, अगर आपको इम्पॉर्टेंट फील नहीं कराया गया व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हैं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको इम्पॉर्टेंस दें, वो आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाएं, ठीक है। एंड अगर वो ऐसा नहीं कराएंगे तो यू विल बी हार्ट ब्रोकन, यू विल बी एंग्री, यू विल बी ट्रिगर्ड, यू विल फील बैड, राइट। बट आप उस ट्रिगर को, उस वूंड को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप उसको हील और ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने उसे सप्रेस रखा हुआ है, एंड आप कॉन्स्टेंटली इम्पॉर्टेंस को चेज कर रहे हो लोगों में। आप खुद को इम्पॉर्टेंट फील नहीं करा रहे हो, या फिर खुद को इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, एंड आप चाहते हो कि लोग आके आपकी वो पार्ट को हील करें, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप जब तक उस चीज़ को हील नहीं करोगे
यू विल बी कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड, एंड ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली इम्पोर्टेंट फील नहीं करवाएंगे। वो कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा ही फील कराएंगे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो और आप क्यों नहीं हो, एंड वो हर एरिया में ट्रिगर करेंगे जहाँ पे आप खुद को नहीं देखना चाहते, आप खुद को हील नहीं करना चाहते। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, so I can say that if you don't value yourself in any kind of relationship, सामने वाला person will not value you, and to have that value you need to ask yourself कि आपकी relationships में expectations क्या क्या हैं, and ये expectations कहाँ से आ रही हैं। यू नो वी ऑल वांट कि आपको इम्पॉर्टेंट फील कराया जाए, लेकिन अगर वो ईगो से आए कि अगर इसने मुझे इम्पॉर्टेंट फील नहीं कराया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, इसको तो मुझे इम्पॉर्टेंट फील कराना चाहिए, दैट इज़ अनहेल्दी। ओके, आपकी इम्पॉर्टेंस बस होनी चाहिए, यू विल फील इट, ओके, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कॉन्स्टेंटली इम्पॉर्टेंट फील करना है, ठीक है। एंड आई बिलीव दैट वी ऑल आर डिजर्विंग ऑफ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and as a woman, as a female, I feel that connection is very important, and I am trying to heal my relationship with having connection with people, because I was never very good with that, in having connection, but now I truly have this urge and this thing that I really want to have connection now in my life, and I really want to call in those female friendships in my life, and I'm open for it, because this time I do not want to keep my heart closed just because of some bad experiences, because I realized that I had some kind of expectations and fear कि मुझे कभी भी अबैंडन कर दिया जाएगा, कभी भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, मेरी वैल्यू समझी नहीं जाएगी। फिर यहीं से एक्सट्रीम जेलसी आती है, यू स्टार्ट टू फील एक्सट्रीम जेलस। जैसे ही उस इंसान की लाइफ में कोई भी आता है, कोई भी फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट पर्सन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी, तो यू स्टार्ट टू फील जेलस, यू स्टार्ट टू फील इनसिक्योर, यू स्टार्ट टू फील दैट योर प्लेस इज नॉट सेफ इन देयर लाइफ, ओके। एंड इसको हील करने में टाइम लगता है, बार बार ये ट्रिगर होता है। आपको बस अपने आप को ये बोलना है कि दिस टाइम this is not going to happen, and if this happens, this person is not for me. I am valuable, I am safe, my place in others life, in my friends life is safe, okay। and आप ऐसे लोगों को ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर कोई आपको किसी दूसरे इंसान से इतनी जल्दी रिप्लेस कर दे रहा है, या फिर किसी दूसरे के उसकी लाइफ में आने से आपको इम्पोर्टेंस कम देना स्टार्ट कर दे रहा है, तो दे आर जस्ट शोइंग देयर ट्रू सेल्फ, दे आर नॉट शोइंग योर ट्रू वर्थ, कि यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ इट। दे आर शोइंग दैट दे कैन नॉट गिव इट टू यू, दे डू नॉट हैव इट, ओके। दे कैन नॉट रिसीव वॉट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, दे कैन नॉट एक्नॉलेज एंड सी इट। उन्हें वही चाहिए जो उनको कहीं और से मिल रहा है। तो ठीक है, आप भी अपने आप पे वर्क करिए, एंड आप भी खुद से पूछिए कि मैंने क्यों इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, मेरी कौन सी ऐसी अनमेट नीड थी, या फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन ऐसे इंसान से क्यों थी मुझे, मैं क्यों इसे हील करना चाहती थी, मैं क्यों इसको और समझना चाहती थी, मैंने खुद के बारे में, खुद के इमोशंस को वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, ओके। उसके लिए आपको सेफ्टी अपने अंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप पे ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ लव। अब वो किसी से भी आए, you are deserving of being acknowledged, you are deserving of being seen and heard and understood। आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा that you are valuable, you are deserving of love, and you are deserving to be seen and heard and understood, and लोग
आपकी चीज़ों को, वैल्यू को समझें। आपको ये खुद को बताना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको खुद को भी तो वैल्यू करना पड़ेगा ना। अगर आप कांस्टेंट फियर में, जैसे उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपने और करना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो कहीं और चले गए, आपने और देना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या बता रहे हो? दैट यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ। अब क्या बता रहे हो? दैट यू आर सो इनसिक्योर कि वो आपको जैसा भी गंदा ट्रीट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप और डर के मारे उनके पीछे भाग रहे हो, जबकि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और आपको ऐसे लोग क्यों नहीं मिलेंगे जो आपकी फ्रेंड बनना चाहेंगे, जो आपकी वैल्यू करना चाहेंगे, राइट? You know, like everything is a inner work. I was asking myself that how this sound in the background is bothering me so much, because I feel anger, irritated, frustrated. I just want to go and punch the person who's making all these sounds and all. So I got the answer that that's how I was brought up. That's how my environment was around me. Okay, that's how I felt when I was growing up. So many noises, so many sounds, not, thinking about how this is going to impact me. That's what came out. So I need to work on this anger thing, this thing. Okay. On this note, I will complete my video here, and I will see you all guys in my next video with the new content, with the new realization. Till then, bye bye and take care. And if you like my content, then do share, subscribe, and share with your friends and family, because you guys means a lot to me. Take care. Bye bye.